This is a pressure regulator. So pressure regulator basically have two walls. Okay, two walls means first of all we will see the construction of it. How what the parts it will concern, what are the parts it will construct. So it have two things. One is the plunger, okay, and another push-up walls. This is your push-up wall and this is your plunger. Another thing, it have a three ports, totally three ports it have. One is the this port, second is this one, and third one is a this one. Another thing, if you observe properly, then this plunger have a slot over here, okay, and this entire thing is hollow. This is the hollow. This plunger is a shell type, like your piston, as piston is hollow internal, okay. So in that manner this plunger is present over here. After there is a seals, o-ring is present at a needle of or at the head of the plunger, okay. It just ensuring that the proper sealing action is take place, proper sealing is there, that will ensure by this o-rings present over the head of this plunger, okay. So this is the slot present at the plunger. This is a one port, this is another port, and this is the third port. Again, this is a push-up wall. This push-up wall consists of one spring which is loaded, okay. This spring is used to hold this push wall in this direction. It tightly hold this push wall in this direction. And another thing, this big spring you can see here, this big spring pushing this plunger against this seat in this direction, okay. So push wall tightly hold against this seat and the plunger tightly hold against this seat, okay. At non working action, और we can say in operative condition, जब इंजन ऑन नहीं है, that time आपका जो पोजीशन होगा इस पुश वॉल का एंड प्लंजर का, वो अगेंस्ट पुश वॉल का इस सीट के अगेंस्ट रहेगा, और आपका जो प्लंजर है उसका इस सीट के अगेंस्ट रहेगा. सो दिस इज द पोजीशन एट इन ऑपरेटिव फेज. एज सुन एज इंजन गेट स्टार्ट, योर प्रेशर ऑफ फ्यूल, दैट इज कंट्रोल प्रेशर इनटेक जो हम बोलते हैं, दैट विल pushing your plunger backward direction, and as soon as the plunger touches to push up wall, आप देख सकते हैं इन ऑपरेटिव पोजीशन में पुश अप वॉल एंड प्लंजर के बीच में जो गैप है, थोड़ा एयर गैप है, यहाँ वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ वो कांटेक्ट में आ गए हैं. इट मींस whenever pressure here reaches to go above the pressure of the spring which is holding plunger against the seat, okay, that time ये plunger पीछे जाएगा and it make a contact with the push up wall, and it also pushing a push up wall from their wall seat, उसके सीट से उसको deflect करेगा. So this position come when thing is operating, engine is operating. अभी इसका काम क्या है? What is the function? The function is it maintain to output delivery pressure in the fuel distribution block. अब fuel distribution block कहाँ है? So ये जो दिख रहा है ये आपका fuel distribution block है. Okay, it will fuel distribution block is look like this. Okay, ये जो छोटा चीज है उसको एंडाज करके हमने यहाँ इस तरह से कैसे दिखाया, बट वो दिखता कैसे इधर कॉम्प्लेक्स. इथे सगळं ते असं कॉम्प्लेक्स असल्यामुळे तुम्हाला इमॅजिन करायला डिफिकल्ट जात असेल, बट जस्ट इमॅजिन व्हेनेवर व्हेन इट्स टाइम कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक जो आपण घेऊ त्या टाइमला तुम्ही इमॅजिन करू शकता. बट सेक ऑफ टाइम जस्ट इमॅजिन दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, ओके, एंड दिस इज अ प्रेशर रेगुलेटर. ये जो डिवाइस है हमने इसको एनलार्ज करके यहाँ लिखा है, ओके. सो द प्रेशर रेगुलेटर बॉलला जी लाईन येत आहे, ही जी लाइन आहे, दिस लाइन इज नथिंग बट रिटर्न टू फ्यूल टैंक. दिस इज कॉल्ड एज अ रिटर्न टू फ्यूल टैंक. अब वो लाइन कौन सा है? सो रिटर्न टू फ्यूल टैंक, दिस लाइन, ओके, दिस इज अ रिटर्न टू फ्यूल टैंक. मतलब ये जो पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट, इट इज कनेक्टेड टू द टैंक फॉर द रिटर्न पर्पज. अभी जा रहा है फ्यूल टैंक से जा रहा है वो ये वाला लाइन, और टैंक में वापस रिटर्न आ रहा है फ्यूल वो ये वाला लाइन. और ये लाइन किसको कनेक्ट है? वो कनेक्ट है प्रेशर रेगुलेटर को एट दिस पोजीशन, ओके. उसके आगे एक पॉइंट है यहाँ फ्यूल का, इसके आगे ये जो प्रेशर रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर के आगे से दो पॉइंट है,
दो पोर्ट गए हैं, ओके, वो कहाँ से आ रहा है, फ्यूल फिल्टर से जा रहा है, फ्यूल फिल्टर से यहाँ एंटर हो रहा है, okay, means here one more port is present which is not a part of the pressure regulator. इथे आणखी एक पोर्ट आहे दोन, the first port and the second port which is not a part of pressure regulator, this one and this one which is not a part but it comes here after the pressure regulator. वो कहाँ से आ रहा है फ्यूल, वो आ रहा है फ्यूल फिल्टर से, ओके, प्रेशराइज फ्यूल है वो आ जा रहा है इधर, म्हणजे याच्या पुढे येतो आणि इकडनं तो पुढे फ्यूल डिस्ट्रीब्युटरला पण जातो आणि इकडे मागे पण येतो, कळलं, म्हणजे तो इकडे जो एंट्री होणार आहे तो पॉईंट या ठिकाणी आहे, ओके, तो इथे पण येतो आणि इकडनं फ्यूल डिस्ट्रीब्युटरला जाणार ॲज वेल एज तो मागे पण येणार या प्लंजरला पुश करण्यासाठी मागच्या साईडला, म्हणजे इकडे पुश करायला, okay. So whenever when that pushing pressure of this plunger in this direction get varies with respect to the load of the engine. अगर इंजन को ज़्यादा फ्यूल लग रहा है so pressure which pushing to this thin plunger will less, or the deflection between deflection of this plunger from this seat is very less, okay. Otherwise it get regulate with respect to the demand of fuel from the engine, it is proportional to the load on the engine, okay. अगर ज़्यादा फ्यूल लग रहा है इंजन को तो फिर जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में जाएगा रैदर इधर रिटर्न आने के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में फ्यूल को नहीं चाहिए, इंजन को लोड नहीं फ्यूल नहीं चाहिए, in that case whatever the fuel going to the distributor block is less and maximum fuel come here and entering to the fuel tank through return line, okay. ये जो रिटर्न लाइन है वहाँ से वो रिटर्न आएगा, okay. अगर इंजन को फ्यूल ही नहीं चाहिए, वो फ्यूल फिल्टर फ्यूल भेज रहा है ऊपर बट इंजन को लोड नहीं है इंजन के ऊपर उतना, सो इंजन वोंट रिक्वायर दैट मच फ्यूल, सो जो भी फ्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में ना जाते हुए वो रिटर्न आएगा यहाँ से एंड उस प्लंजर को पुश करेगा, इट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लंजर विल प्रोपोर्शनल टू द लोड अगेन, अगर इंजन पे ज़्यादा लोड है तो इट विल reduce, sorry, indirectly proportional, okay. This deflection of the plunger from the seat is indirectly proportional, अगर इंजन पे ज़्यादा लोड है तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा and the moment of this plunger from the seat will less, अगर इंजन पे कम लोड है तो फ्यूल कम लगेगा एंड मोमेंट ऑफ द प्लंजर फ्रॉम द सीट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल रिटर्न जाएगा क्योंकि इंजन को नहीं लग रहा है, सो डिफ्लेक्शन विल बी मोर, सो जैसे ही प्लंजर पीछे जाएगा सो पुशअप वॉल को भी पुश करके इस पुशअप वॉल को भी उसके सीट से डिफ्लेक्ट करेंगे। अभी ऊपर से भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल आएगा इधर, ओके, थ्रू दिस कैविटी इट विल ट्रैवल, और जो मैंने स्मॉल होल बोला था जो प्लंजर पे, थ्रू दिस होल इट विल एंटर टू द फ्यूल टैंक, मतलब यहाँ से भी फ्यूल आने वाला है। ये यहाँ से फ्यूल कहाँ से आएगा, तो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर एक लाइन, ये जो पॉइंट है पुशअप वॉल का, ये हम कहाँ कनेक्ट किया है, हमने उसको कनेक्ट किया है दिस वार्म अप रेगुलेटर, इधर एक बड़ा बॉक्स है उसको बोलते हैं वार्म अप रेगुलेटर, वो पाइप वहाँ से आ रहा है और एंटरिंग टू दिस वे, ओके। जैसे ही पुशअप वॉल पुश हुआ तो यहाँ से भी जो रिटर्न फ्यूल, अभी इधर वार्म अप रेगुलेटर में फ्यूल कैसे जाता है, that you have to that we will see in another lecture, okay, whenever we are talking about the warm up regulator. So warm up regulator में भी फ्यूल जाता है, अब वो फ्यूल को भी रिटर्न कराना है हमको फ्यूल टैंक में, सो फॉर दैट पर्पस दिस रिटर्न लाइन इज कनेक्टेड टू द प्रेशर रेगुलेटर एंड दैट प्रेशर रेगुलेटर जो वार्म अप रेगुलेटर से रिटर्न लाइन आया फ्यूल का वो यहाँ कनेक्ट होगा, और जैसे ही पुशअप ऑफ डिफ्लेक्ट हुआ वो fuel will travel through this way and it will passing through this narrow hole into the fuel tank. So with respect to the engine load, your pressure regulator operating a plunger, okay, and the push-up valve, okay. So it just behave with respect to the engine load and maintaining the pressure in the line, okay. So this is your pressure regulator. Now we will see the point of what we are talking about. फर्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन द आउटपुट डिलीवरी प्रेशर इन द फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। अभी अगर इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगता है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, दिस इज योर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। अगर इंजन का डिमांड ज़्यादा है तो रिटर्न लाइन में फ्यूल नहीं जाएगा, ज़्यादा इधर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक को। अगर इंजन का डिमांड कम है फ्यूल के बारे में तो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक को फ्यूल ना जाते हुए वो रिटर्न लाइन में आने वाला है, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज होगा, सो दैट रिस्पेक्ट में वो प्रेशर रेगुलेट करता है बाय डिफ्लेक्टिंग दिस स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा। अगर आगे फ्यूल को जाने को जगह है इंजेक्टर में डिमांड की वजह से
सो इट वोंट डिफ्लेक्ट द स्प्रिंग। अगर इंजन को रेस्ट्रिक्शन है इंजेक्टर से पास होने के लिए क्योंकि डिमांड नहीं है ज़्यादा, so it will deflect the spring and it will pushing the pressure regulator backward by keeping a pressure at predefined level, that is 2 to 3 bar, and it going to the fuel tank. So this is the main principle working or objective of your this pressure regulator valve. Another thing, point number 2, once the pressure in the block reaches to 5 bar, pressure regulator plunger leaves the seat and allow to pass the excess fuel to fuel tank. Now यह दो स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करना है, सो द प्रेशर जो है हमने 5 बार रेटेड प्रेशर है यहाँ, सो 2 to 3 बार लाइन प्रेशर एंड 5 बार ये स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ है। सो इट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू योर साइज ऑफ द इंजन। अगर इंजन का साइज ज़्यादा है, सीसी ज़्यादा है इंजन का, सो लाइन भी बड़ा रहेगा फ्यूल लाइन, एंड फ्यूल लाइन का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। अगर इंजन स्मॉल इंजन है, स्मॉल सीसी का इंजन है, सो इन दैट रिस्पेक्ट आपका साइज प्रेशर भी डिपेंड रहेगा। सो 2 to 5 बार और 2 to 3 बार के रेंज में आपका प्रेशर रहेगा। आफ्टर द अमाउंट ऑफ रिटर्न पोल इज ओपन विल मैच बाय द डिमांड ऑफ द इंजन एंड पंप डिलीवरी प्रेशर। ओके, सो कितनी सीट ओपन होगा, कितनी सीट का प्रोपोर्शन ओपन होगा, इट मैचेस विद द डिमांड फ्रॉम द इंजन। ओके, जितना इंजन डिमांड करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू द लोड, दैट रिस्पेक्ट में ये जो रिटर्न लाइन है कम ज़्यादा ओपन होता है, इट रेगुलेटेड। अगर ज़्यादा डिमांड कर रहा है फ्यूल इंजन, तो ये जो रिटर्न लाइन है वो कम ओपन होगा, क्योंकि रिटर्न नहीं जाने देना है हमको, हम मैक्सिमम फ्यूल हम इंजन को दे रहे हैं फॉर द यूटिलाइजेशन पर्पज। तो इन दैट रिस्पेक्ट में वो कम ज़्यादा ओपन होता रहता है। द पुशअप वाल्व प्रेस्ड अगेंस्ट द सीट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, so when plunger leave its seat against the spring it push back to the push-up valve, mean to say कि जब प्लंजर अपना सीट लीव करेगा and when it touches to the spindle of the push-up valve, यहाँ जिस तरह टच हुआ है, that time it also operate the push-up valve and it responsible to make a displacement of push-up valve from their seat. Okay, इस सीट से डिफ्लेक्ट करने को रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये उसने कहा है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज द थिंग when plunger will deflect, और वार्म अप रेगुलेटर से भी वो जो भी फ्यूल है वो रिटर्न आएगा इधर। आफ्टर दैट when the engine stop, fuel supply from the fuel will stop and spring, plunger and push up valve bring it to its ऑन सीट। मतलब जब भी इंजन इनऑपरेट होगा, मतलब इंजन को स्विच ऑफ किया, तो जो भी पुशअप वॉल है वो बंद हो जाएगा, प्लंजर अगेन उसके सीट पे आ जाएगा, एवरीथिंग विल रेस्ट ऑन देयर सीट। अब ये पुशअप वॉल है वो उसके सीट के अगेंस्ट आ जाएगा और अपना जो प्लंजर है वो उसके सीट के अगेंस्ट आ जाएगा। इन दैट रिस्पेक्ट ऑल थिंग विल कम लाइक शोन इन पिक्चर ए, दैट इज रेगुलेटर पोजिशन एट इनऑपरेटिव कंडीशन। जो भी उसके वजह से जो भी प्रेशर फ्यूल अवेलेबल है इसके अबव वो वहाँ रहेगा, बट जो भी फ्यूल इधर अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में रहेगा, और जो भी फ्यूल इधर तक प्रेजेंट था प्रेशर रेगुलेटर टू फिल्टर के बीच में, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो भी फ्यूल है इट विल कम बैक एंड रशिंग टू द एक्यूमुलेटर। ओके, क्योंकि ये सीट अगर इनऑपरेटिव कंडीशन में क्लोज हो गया तो जो भी फ्यूल इसके आगे रहेगा इट वोंट कम बैक। ओके, बट जो भी फ्यूल यहाँ प्रेजेंट है इस कैविटी में प्रेजेंट, इस कैविटी में भी फ्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि इधर ये होल है, सो जो भी फ्यूल है वो इस कैविटी में प्रेजेंट है, वो फ्यूल और यहाँ से लेके फिल्टर तक जो भी फ्यूल है इट विल स्टार्ट रशिंग टू द एक्यूमुलेटर। सो इसके लिए यहाँ भी प्रोविजन किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल है वो इतना ही रहे, डिस्ट्रीब्यूटर को जो फ्यूल गया वो अगेन पीछे नहीं आना है, जैसे हमने यहाँ किया कि जो भी फ्यूल एक्यूमुलेटर में गया वो अगेन फ्यूल पंप में नहीं आना चाहिए, इसलिए नॉन रिटर्न वॉल है। सो इन दैट वे यहाँ भी अरेंजमेंट है कि जो भी इसके आगे चला गया डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक में चला गया वो तो पीछे नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ भी हमने स्प्रिंग का यूज़ किया है। तो यहाँ पर्पज है स्प्रिंग का कि जो भी फ्यूल आगे गया वो पीछे ना आए। तो दिस इज द योर pressure regulator, okay, which is connected to the distributor, which is again connected to the warm up regulator। okay, so this thing pressure regulator जो red block shaded किया है, red block से shaded किया है, it is connected to the distributor and also connected to the warm up regulator। okay, so ये दो device को connected है, again it is further connected to the fuel tank also, it is also connected to the filter also। मतलब चार चीज़ों को, चार डिवाइस को अपना प्रेशर रेगुलेटर कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड टू फिल्टर, दिस लाइन इज कनेक्टेड और कमिंग फ्रॉम द फ्यूल टैंक, दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द वार्म अप रेगुलेटर, एंड इसका जो फ्रंट फेस है वो कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक।
Okay, so this is your pressure regulator. I hope you have understood the construction and working and the purpose of the pressure regulator. Okay, if you feel any difficulties, please do ask me. Okay, if you have any difficulty, please ask me.